Good morning, students. Our today's topic is combination of cells. First of all, I am taking the series combination. In series combination, consider there are two cells of EMF E1, internal resistance R1, IT the current, and the second one is of EMF E2, internal resistance R2, and the same current is flowing as this is a series combination. This point is suppose A, this one is B, this one is C. Now, as we know that E is equal to I V minus V is equal to E minus IR. Means the terminal potential difference across any component must be less than by the EMF by a small amount IR. Therefore, the potential difference across cell of EMF E1 may be written as VAB is equal to E1 minus IR1. Okay. Similarly, the potential difference across cell of EMF E2 VBC हो जाएगा. तो VBC इज इक्वल टू किसके होगा? VBC इज इक्वल टू होगा E2 माइनस IR2. ठीक है. अब अगर हम ये मान लें कि ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन में बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल सेल having EMF E equivalent and resistance are equivalent, this point remains same A, this C and current I remains same, then also we can write VAC is equal to E equivalent minus IR equivalent. तो हमने क्या करा? हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करा फर्स्ट सेल के क्रॉस, फिर सेकंड सेल के क्रॉस, फिर इनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस. एज वी नो, अभी रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन में हमने पिछले लेक्चर में किया था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. ऐसे ही यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल है VAC इज इक्वल टू VAC किसके इक्वल होगा? VAB प्लस VBC. अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VAB की वैल्यू है E1 माइनस IR1 प्लस VBC की वैल्यू है E2 माइनस IR2. ठीक है. तो इसे थोड़ा रीअरेंज करूं, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2. E1 प्लस E2 माइनस I इज कॉमन R1 प्लस R2. ठीक है, ये आ गया. अब हम क्या करें? हम इन्हें इक्वेट कर दें. कंपेयरिंग, on comparison we can write E equivalent is equal to E1 plus E2 और I का कोफिशिएंट है R equivalent, यहाँ I का कोफिशिएंट है R1 plus R2. तो R equivalent may also be written as R1 plus R2. तो E equivalent E1 plus E2 के इक्वल हो गया और R equivalent R1 plus R2 के इक्वल हो गया. अगर हम कंसीडर करते हैं if n cells are there, if there are n cells in the same combination, तो E equivalent will be E1 plus E2 plus E3 plus and so on En. ठीक है. और similarly we can write R equivalent as R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus and so on plus Rn. Means if we are having series combination of the cells, then their equivalent EMF will be the sum of the EMF of individual cells. And their resistance, internal resistance will be the sum of the resistance, individual resistance of the cell. ठीक है. अब इसी चीज को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. मैं एक बार फिर बता देता हूं. हमने यहां पर पोटेंशियल, इस फार्मूले से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया,
फिर दूसरे वाले एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, फिर हमने मान लिया इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर ये हो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू एंड इक्वेटिंग वी गॉट दिस रिलेशन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कंसीडर करते हैं कि these cells, two cells are connecting in the parallel with the same source, or we can draw the diagram in this way. This is point, suppose A, this point is C, EMF E1, EMF E2, internal resistance R1, internal resistance R2, I1 be the current by the first cell, I2 be the current by the second cell, and it will be equal to I. और अगर इनका इक्विवेलेंट मालूम है कि ये सेल जो है इनका इक्विवेलेंट है, इसका EMF E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, I be the current, this point is A, this is C. तो अगेन by the relation terminal potential is E minus IR for first cell के लिए V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम रहेगा, इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। सिमिलरली सेकेंड सेल के लिए V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यानी मैंने ये फार्मूला फिर से अप्लाई कर दिया। इस बार डिफरेंस क्या है, इस बार करंट चेंज है, I1 I2 है इस बार करंट, तो ये हमने फाइंड आउट करा। तो फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 माइनस V अपॉन R1। यहां से I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 माइनस V अपॉन R2। सिमिलरली इक्विवेलेंट के लिए अगर कैलकुलेट करूं तो I मस्ट बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिएगा, अब एज वी नो दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, देयरफॉर अब यहां पर हम I1 I2 की वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो क्या वैल्यूज आएंगी, I की वैल्यू है E इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 की वैल्यू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 और E2 की टर्म एक साथ E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया, ठीक है। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R इक्विवेलेंट यानी कि V का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। अगर हम n सेल्स की बात करते हैं, for n सेल्स, n सेल के लिए क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन En अपॉन Rn, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे तो V इक्वल टू E माइनस आई आर से मैंने I1 I2 की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर I की वैल्यू फाइंड करी और उसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, देन वी गॉट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Now this topic is completed. Moving towards the next topic, that is high voltage power transmission. High voltage power transmission. It means the electricity, we are talking about the transmission of the electricity, yani from the
पावर जनरेशन, अगर हम बात करते हैं पावर जनरेशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन से जनरेट होने के बाद में थ्रू पोल्स, ये डोमेस्टिक पर्पस में यूज करने के लिए रीच करती है, यानी दिस इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउसेस। तो क्या होता है कि व्हाइल द पावर इज जनरेटेड हियर, तो यहां पर वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, यानी वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद केबल के थ्रू, वायर्स के थ्रू वोल्टेज ट्रांसफर की जाती है, और बिफोर रीचिंग टू द हाउसेज इसको स्टेप डाउन भी किया जाता है, यानी डिक्रीज किया जाता है। एप्रोप्रिएट वैल्यू 220 वोल्ट तक इसको डाउन कर दिया जाता है, एंड देन सप्लाई टू द हाउसेस। तो क्वेश्चन इज कि व्हाई द वोल्टेज इज ट्रांसफरिंग, व्हाई वी आर स्टेपिंग अप। तो एज वी नो द फार्मूला दैट P इज इक्वल टू VI, ठीक है। अगर मैं पावर डिसिपेटेड की बात करूं, यानी थ्रू द केबल, अगर पावर डिसिपेशन यानी केबल के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो कुछ पावर वहां पर डिसिपेट हो रही है। उस पावर डिसिपेट की बात करूं तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन I स्क्वायर R। पावर का फार्मूला होता है I स्क्वायर R, और अगर मैं I को पावर के टर्म में P अपॉन V पुट कर दूं तो इट विल बी P स्क्वायर R अपॉन V। यानी ये जो है ये पावर रिक्वायर्ड है, ये डिसिपेटेड है, यानी जो जूल हीटिंग की वजह से यहां पर पावर डिसिपेट हो जाती है वो है। तो पावर डिसिपेट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम क्या करें, या तो रेजिस्टेंस को कम करें। रेजिस्टेंस को कम करने का तरीका क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज कर दें। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर डिक्रीज कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना R कम होगा, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर बढ़ा देंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वायर विल लॉस, क्योंकि ये इसकी एक लिमिट है, उसको बड़ी बड़ी रोड्स की फॉर्म में हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन तो गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, द सेकंड वे इज टू डिक्रीज द करंट। अब करंट को कैसे डिक्रीज करा जाए, टू ट्रांसफर द कांस्टेंट पावर, यानी P पावर को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करने में पावर लॉस अगर ना हो, पावर लॉस को मींस प्रिवेंट करने के लिए हम करंट को क्या करें, कम कर दें। करंट कम कैसे होगा, जब वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए वोल्टेज को इंक्रीज करके पावर करंट को डिक्रीज कर दिया जाता है। बाय दिस रिलेशन पावर डिसिपेटेड I के कम हो जाने से ये जो पावर है कम हो जाएगी, या वोल्टेज के बढ़ जाने से पावर कम हो जाएगी। यानी ये P जो है ये ट्रांसफर पावर, और PT क्या है, जो यहाँ पर डिसिपेट हो गई, यानी कि जो कंज्यूम हो गई, जो हीट की फॉर्म में रेडिएट हो गई। तो जो रेडिएटेड पावर है वो कम मिनिमाइज होगी जब V बढ़ेगा, क्योंकि R इज सेम, P we want to same, then V increases, PT decreases, I decreases, PT decreases, keeping the R same। तो इस तरह से किसी भी पावर स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, जिससे करंट कम हो जाए और पावर कंजप्शन कम हो जाए। और जो हाउसेज है उसमें इतनी हाई वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि अप्लायंसेस हमारे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर वर्क करते हैं। तो पावर को डिक्रीज करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है बिफोर रीचिंग टू द हाउसेज। तो दिस इज द वे ऑफ द हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन। ओके।